Today we'll discuss about the cylindrical capacitor. We have studied about parallel plate capacitor and spherical capacitor. Today our topics of discussion for this session is cylindrical capacitor. Then we will discuss about grouping of capacitors. What happens when capacitors are connected in series, and suppose we have multiple capacitors and we have to replace that all these capacitors by a single capacitor. Okay, suppose you have 2 microfarad, 3 microfarad, 4 microfarad capacitors which are connected in series. Now you are told to replace all these 3 capacitors by a single capacitor. So what will you do? What capacitance, what should be the capacitance of the capacitor to replace all these 3 capacitors? That is one grouping of capacitors when capacitors connected in series. और एक होता है कि capacitors are connected in parallel. 3 capacitors are connected in parallel, suppose 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad. Now instead of 3 capacitors in series, you have to use one single capacitor. So then what capacitance you should, what should be the capacitance of the capacitor? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है वो कैलकुलेट करेंगे. देन वी विल डू कैपेसिटर्स इन सीरीज, grouping of capacitors. Then we will study about the capacitors in parallel, and the final topic is our Van de Graaff generator. Okay, so let's start with cylindrical capacitor. So what is cylindrical capacitor? It consists of, like capacitor in all the cases, it consists of two identical surface, two identical shapes, two cylinders which are coaxial. Okay, these are coaxial cylinders. Axis of the cylinders are same. Inner cylinder is charged and the outer cylinder is earthed. This is cylindrical capacitor. Okay, the inner cylinder is charged and this outer cylinder is earthed. So what will be the capacitance of this capacitor? We have to find out. Suppose lambda is the linear density of charge, means charge per unit length. L is the length of the capacitor, and surrounding this capacitor, this medium has a permittivity epsilon. Correct? So you can write epsilon as epsilon 0 epsilon r. Then what should be the capacitance? So we know that capacitance of a capacitor is given by charge divided by potential difference. Okay, this is, so what is the charge? If lambda is charge per unit length, then in n length what will be the charge? Lambda into L by potential. So this potential difference between these two cylinders, suppose this has a radius A and this radius is B, this radius is B. Okay, so we have to find out what is the potential difference between this and this, inner and outer cylinder. Okay, so consider any point P here at a distance say R. Earlier हम लोग ने क्या देखा, by using Gauss's theorem we derived what is the intensity at the point P. Intensity at a point due to a cylindrical charge कितना हुआ था? Intensity equal to lambda by 2 pi epsilon into r. Distance, r is the distance, lambda is linear density of charge, charge per unit length, epsilon is the permittivity of the medium. So this is what, this already we have discussed. हमने पहले देखा है कि गॉसेस थ्योरम अप्लाई करके किस तरह से P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाला जाता है. ये जो डिस्टेंस है एक्सिस से, इनर सिलेंडर का एक्सिस से इस पॉइंट का दूरी है, कितना डिस्टेंस है? R. सो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज E इक्वल टू माइनस dV बाई dr. हमको V निकालना है. सो नेगेटिव साइन हम फिलहाल नेग्लेक्ट करते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस. तो हम क्या कर सकते हैं? dV इक्वल टू E इंटू dr. करेक्ट. सो E कितना है? इंटेंसिटी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर dr. सो देखो अभी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इतना है.
तो अगर पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा, कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? जब ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा तो डिस्टेंस कितना होगा? ए, है ना, ये ए हो जाएगा एक्सिस, एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर ए, और ये पॉइंट जब यहाँ पर जाएगा तो सेंट्रल एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अगर मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो विल इंटीग्रेट डी वी टू गेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? ए से बी तक। तो डी वी का वैल्यू कितना है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन डी आर बाई आर। तो देखो इसमें लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन क्या है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर। सो इंटीग्रेशन ऑफ, हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स कितना होता है? लॉग एक्स, करेक्ट। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉगरिथम एक्स, ओके, 1 बाई आर। नाउ तो ये नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर हो गया। ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, ए से बी तक। तो हम पहले क्या करते हैं? पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, करेक्ट। सो लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन log of b minus log of a, so log b minus a is log b by a, करेक्ट। पहले क्या किया? r के जगह पे b पुट किया तो log r हुआ, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट log of a, तो log b माइनस log a इज व्हाट? log b by a। तो ये मेरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा एल बाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन log of b by a. Lambda lambda cancel out. So this is equal to 2 pi epsilon L. Capacitance is now ये 2 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एल बाई नेचुरल लॉगरिथम b by a. This is what the capacitance of a cylindrical capacitor, correct? So remember this, ये न्यूमेरिकल के लिए काम पे आएगा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस, ओके। Now we will find grouping of capacitor. When capacitors are connected in series. Capacitor connected in series means what? Suppose we have 3 capacitors. We can take many capacitors. We are taking 3 capacitors. इसका capacitance C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। तो अभी क्या करना है हमको? इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना है। उस सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसको क्या कहा जाता? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसे तुमने किया ना, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वैसे 3 कैपेसिटर के बदले में सिंगल कैपेसिटर यूज करना है। तो सपोज इसको हम सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, क्या होगा? सपोज ये कनेक्ट किया, नाउ व्हाट विल हैपन? इसमें क्यू चार्ज गया, ये माइनस क्यू चार्ज को इंड्यूस करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज इधर रहेगा, करेक्ट। फिर ये माइनस क्यू चार्ज को इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा क्यू। सो जब सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा? सभी कैपेसिटेंस में क्यू चार्ज ही स्टोर होगा ना, सीरीज में चार्जेस आर सेम इन ईच कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस इसमें कितना हो गया? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? देखो हमको पता है कि कैपेसिटेंस इज क्यू बाई वी, ठीक है, ये हमको पता है। तो इसका वोल्टेज कितना हो गया? क्यू बाई, तो वोल्टेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल टू क्यू बाई सी। तो इस कैपेसिटेंस के
बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है सपोज, कितना हो जाएगा Q/C1। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V2, V2 इज Q/C2, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज स्टोर्ड डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। इसके अंदर कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय C3, ठीक है। सो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। टोटल पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया, V पोटेंशियल अप्लाई किया तीनों के अक्रॉस में। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल टू V। सो दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी अगर मुझे तीनों कैपेसिटर के बदले में एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना है, ठीक है, V वोल्टेज के अगेंस्ट में, तो सिंगल कैपेसिटर में भी चार्ज Q स्टोर होना चाहिए। इसका कैपेसिटेंस सपोज C है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सिंगल कैपेसिटर कितना होगा, C इक्वल टू कितना हो जाएगा Q/V, ठीक है, C इज इक्वल टू Q/V हो जाएगा, ओके, और V इक्वल टू Q/C हो जाएगा। तो हम V के जगह पे यहाँ पर पुट कर देते हैं, Q/C इक्वल टू V1, V1 is Q/C1, V2 is Q/C2, Q/C3, ठीक है, Q कैंसिल आउट, सो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखा, जब तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होता तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होता ना, सपोज R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता, तो उस समय उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता, 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और कैपेसिटेंस जब सीरीज में कनेक्ट होता तब कैपेसिटेंस होता दिस। तो एनालोगस टू पैरेलल कनेक्शन ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर इज एनालोगस टू पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? इतना याद रखना है कि सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्ट होता तब चार्ज तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस में सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज कैपेसिटर्स इन सीरीज। अच्छा, अभी मैं कैपेसिटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि सिंगल कैपेसिटेंस जिससे हमको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो सपोज मैंने तीन कैपेसिटर लिए, इन तीनों को मैंने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया और इसके अक्रॉस में एक भी वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या होगा इस केस में, इसका सपोज कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। नाउ चूंकि पैरेलल है तो सभी के अगेंस्ट में वोल्टेज तो सेम रहेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द एंड पॉइंट जो है ना सेम है, इसका भी एंड पॉइंट ये है, इसका भी यही है। तो पैरेलल में जब कैपेसिटर कनेक्ट रहता तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर एंड अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर विल सेम। अभी कौन कैपेसिटर कितना चार्ज ड्रॉ करेगा वो उसका कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज इसमें चार्ज स्टोर हुआ Q1, इसमें चार्ज स्टोर हुआ Q2, इसमें चार्ज स्टोर हुआ Q3, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर इज चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके अक्रॉस में कितना कैपेसिटर, इतना वोल्टेज तो सेम रहेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा Q2/C2, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू कितना चार्ज इसमें स्टोर होगा, Q1 इज इक्वल टू कितना होगा V इंटू C1, इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा Q2 इज V इंटू C2, V तो सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। थर्ड कैपेसिटर में अक्रॉस में चार्ज कितना होगा Q3 इज इक्वल टू V इंटू C3, ओके। अगर मुझे तीनों कैपेसिटर के जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर यूज करना है तो जब मैं V वोल्टेज के अगेंस्ट में इस कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा, इट शुड बी एबल टू ड्रॉ चार्जेस इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज होगा Q विल बी इक्वल टू, सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, C इंटू वोल्टेज, ठीक है। चार्ज
इस पैरेलल कैपेसिटेंस में क्या हुआ, तीनों अलग अलग चार्ज स्टोर करेगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, उतना ही चार्ज सिंगल कैपेसिटर को स्टोर करना चाहिए। तो पैरेलल कनेक्शन में चार्ज जो है ना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। चार्ज स्टोर्ड बाय द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर इंडिविजुअली कनेक्टेड। ओके, सो Q इक्वल टू कितना हो गया, C इंटू V। Q1 कितना हो गया, C1 इंटू V, C2 into V, and this is C3 into V. V cancel out, so C equal to C1 plus C2 plus C3। तो देखो, जब तीन कैपेसिटर को या तीन से अधिक कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो रहा, C1 plus C2 plus C3, जस्ट एल्जेब्रिक सम। तो रेजिस्टेंस को जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R equal to R1 plus R2 plus R3। So parallel connection of capacitor is analogous to series connection of resistances। ठीक है, तो यह याद रखना, पैरेलल में क्या होता, जस्ट ऐड हो जाता है कैपेसिटेंस। नाउ द थर्ड टॉपिक इज वैन डी ग्राफ जनरेटर। नाउ वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या करता, क्या है, ये जनरेट्स करता है हाई वोल्टेज, इट जनरेट्स हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज का काम क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर, एटम को क्रैश करने के लिए, हाई स्पीड एनर्जी पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल हमको कहीं कहीं चाहिए होता है। ओके, एटम को क्रैश करने के लिए चाहिए, तो उस समय हाई वोल्टेज चाहिए, और हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए वी यूज ए जनरेटर कॉल्ड वैन डी ग्राफ जनरेटर। ओके, नाउ वैन डी ग्राफ जनरेटर का जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन कोरोना डिस्चार्ज। अभी का जो कोरोना चल रहा उससे रिलेट करना मत, ठीक है, दिस इज कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या है कि सपोज वी हैव ए पॉइंटेड कंडक्टर, हाँ, तो पॉइंटेड कंडक्टर का जो नुकीला पार्ट है, एकदम जो शार्प पॉइंटर है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण लीकेज ऑफ चार्जेस होता है। दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, correct। So the leaking of charges at the pointed end of a conductor is called corona discharge। वैन डी ग्राफ जनरेटर का भी प्रिंसिपल कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो हम थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और किस तरह से हाई वोल्टेज जनरेट करता है वो देखेंगे। ओके, सो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी ह्यूज सेल, मेटेलिक सेल, कितना 18 to 20 फीट इन डायमीटर, इतना ह्यूज सेल। तो इस शेल को सपोर्ट करने के लिए कंक्रीट पिलर भी होना चाहिए, देन ओनली इतना ह्यूज स्ट्रक्चर को हम सपोर्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, सो ए ह्यूज सेल, मेटेलिक शेल ऑफ 18 to 20 फीट डायमीटर, उसको कंक्रीट पिलर के ऊपर खड़ा कर दिया गया। ओके, नाउ इसमें वी हैव सम, दो पुली है, यहाँ पर पुली है, यहाँ पर भी एक पुली है। पुली में क्या होगा, एक कंटिन्यूअस एक बेल्ट रन कर रहा, जैसे कन्वेयर बेल्ट टाइप का होता है ना, वैसे रन कर रहा, ये ऊपर जा रहा नीचे आ रहा। ठीक है, दिस इज P1, दिस इज P2। ये जो बेल्ट है इंसुलेटिंग मेटल का, इंसुलेटिंग सब्सटेंस का बना हुआ था, रबर का होगा, सिल्क का होगा। ठीक है, अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंटेड कंडक्टर को रखेंगे, यहाँ पर इसको बैटरी का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी इज अर्थड। सपोज 100 वोल्ट का एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और उस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने अर्थिंग कर दिया। ठीक है, इस पॉइंटेड कंडक्टर का नाम दिया A। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ कोरोना डिस्चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर ये छोड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे ही बेल्ट ऊपर जाएगा तो इसका जो डिस्चार्ज, जो चार्ज है, ये बेल्ट के साथ ऊपर चले जाएगा। सिल्क बेल्ट और रबर बेल्ट विल कैरी दिस चार्ज। यहाँ पर मेरे पास और एक पॉइंटेड और एक
कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, जिसका नाम दिया बी। ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कैच कर लेगा। यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज को वो कैच कर लेगा। कैच करके यहाँ पर और एक कंडक्टर है, ये क्या करेगा, सी। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये इंड्यूस करेगा। सी कंडक्टर में क्या करेगा, बी पॉजिटिवली चार्ज है, सी कंडक्टर में क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। अच्छा, सी कंडक्टर का जो अदर एंड है तो उधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, बट चूंकि ये सेल जो है सामने है तो सेल में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो बाउंडेड चार्जेस नेगेटिव चार्ज था, ये बेल्ट तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा, मेरा ऊपर जा रहा नीचे आ रहा बेल्ट, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा। बेल्ट जब भी नीचे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो था, जो इंड्यूस किया था बी ने, वो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद यहाँ भी एक कंडक्टर है, इसका नाम डी दे दिया, पॉइंटेड कंडक्टर। ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कैच कर लेगा। ये जो पुली है P2, ये कंडक्टर डी पुली के साथ कनेक्टेड है और पुली को मैंने अर्थिंग में डाल दिया, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अर्थिंग हो जाएगा। तो इस तरह से एवरी साइकिल में ए से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, बी में आएगा, बी नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करके नीचे भेज देगा, और सी में बी क्या करेगा, सी में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करके नीचे बेल्ट कैरी करके लेके आएगा, और सी का जो फार एंड है, अपोजिट एंड है, उसका पॉजिटिव चार्ज सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हर एक साइकिल में क्या हो रहा, सी का पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा। तो अगर मैं 100 वोल्ट्स भी इधर अप्लाई किया तो कंटिन्यूअस अगर पुली रन करेगा तो क्या होगा, मिलियंस ऑफ वोल्ट्स इसमें आ जाएगा। कैसे, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ना, तो वोल्टेज कैसे बढ़ेगा, Q बाई सी। तो देखो, चार्ज अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है, सेल का वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज इसमें जनरेट कर लेंगे हम। बट क्या होता है, सच हाई वोल्टेज में इतना हाई वोल्टेज को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सराउंडिंग मीडियम जो है ना, उसका इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है, सराउंडिंग मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा, लीकेज ऑफ चार्जेस में हैपन। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसका जो एयर है, इसका एयर को निकल के इसमें कुछ ऐसा प्रेशराइज करके इसको एक मेटेलिक शेल के अंदर रखा जाता है, ताकि ये इंसुलेशन ऑफ दिस सराउंडिंग मीडियम, ये स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें डाल दो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, इंसुलेट करेगा, कि ये जो चार्ज जो ब्रेकडाउन होके सराउंडिंग मीडियम का इंसुलेशन ब्रेकडाउन होके जो एयर में लीकेज हो रहा था उसको नहीं होने देगा। तो एंटायर थिंग is enclosed in a metallic shell and strong dielectric medium is introduced. Okay, एक प्रेशर भी मेंटेन किया जाता है। नाउ उसमें क्या होगा कि you can maintain a very high voltage. So this is how Van de Graaff generator generates high voltage. तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ what we have done till now. Okay, cylindrical capacitors, then we studied about the capacitors in series. ओके, दिस इज हाउ कैपेसिटेंस इन सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है ना, 1/C इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, कुछ सीरीज में कनेक्ट होगा, कुछ पैरेलल में कनेक्ट होगा, किसी जगह पे हमको किरचॉफ्स लॉ यूज करके निकालना पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, then only we can find out the equivalent capacitors. तो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का, तब हम करेंगे कि व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सर्किट। ओके, फिलहाल अभी हम लोग सिंपल वे में ग्रुपिंग किया, पैरेलल एंड सीरीज, ठीक है। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी किसे कहा जाता है, कि कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विद द गिवन मीडियम एज डाइलेक्ट्रिक। एक गिवन मीडियम मतलब सपोज उसके अंदर माइका रख दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, उसके कैपेसिटेंस निकालो, और अगर उसके अंदर एयर रहेगा या फ्री स्पेस रहेगा तब कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। एक गिवन मीडियम के साथ कैपेसिटेंस निकालो और
एआर के साथ कैपेसिटेंस निकालो, तो इसका जो रेशियो होता है उसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहा जाता है। देन वी स्टडीड अबाउट द वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन बताया, इसमें नोट्स है, डिटेल एक्शन कैसा होता है इसके अंदर। सो दिस इज हाउ दिस वेन डी ग्राफ जनरेटर वर्क्स। ठीक है, तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरा जो हमने शुरू से लेकर अभी तक किया है वो एक बार देख लेते हैं। सही, वेरी फास्ट है। सो we started with our basic definition of electrostatics, what is Coulomb's law, then electric field measure करने के लिए हमको potential and intensity दो तरह से measure होता है। intensity is a force and potential and intensity के बीच में relation भी है ना, E equal to minus dV by dr। then हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी निकाला ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देन हमने रिलेशन निकाला। ओके, फिर हम लोग एक डाइपोल लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके चलते एट एनी पॉइंट आर थीटा था पोलर कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट पर हम लोग क्या निकाला, उसका पोटेंशियल निकाला इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए और इंटेंसिटी निकाला। ठीक है, ये सब निकालने के बाद इसमें क्या था कि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी था तो उसका डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट था, तो डायरेक्शन निकालना पड़ा था। देन हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। सच दैट यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एज द कर्व, जिस कर्व के में अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर इंटरसेक्ट करता होता है ना तो एट द सेम पॉइंट दो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी मिलता, विच इज नॉट पॉसिबल। फिर हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली सरफेस को इमिट करता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से निकलता है, दिस इज इमेजिनेशन, एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, परपेंडिकुलरली निकलता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। फिर हमने बोला फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, फिर देन फ्लक्स और इंटेंसिटी में रिलेशन क्या है वो हमने निकाला कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड एरिया। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमको इंटीग्रेशन से निकलना पड़ता है। फिर हमने आया गॉसेस थ्योरम में, इसमें क्या कहा गया कि टोटल फ्लक्स होगा एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इसको हमने सॉलिड एंगल का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय क्लोज सरफेस 4 पाई, ये देखा, उससे हम लोग गॉसेस थ्योरम को प्रूव किया। फिर गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन में आया हमने, हाँ, एप्लीकेशन में क्या क्या सीखा, इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज शेल। ठीक है, इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज प्लेट, प्लेट दो तरह का होगा, एक इंसुलेटिंग प्लेट, एक कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट का एक साइड का बॉक्स नहीं रहेगा, ठीक है, और इंसुलेटिंग प्लेट में दोनों साइड में ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस रहेगा, इसको पिल बॉक्स भी कहा जाता है। फिर देन हमने क्या निकाला, इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सिलेंडर, जो अभी हमने यूज भी किया है ना, इंटेंसिटी यूज करके कैपेसिटेंस निकाला सिलेंडरिकल कैपेसिटर का। फिर हमने कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर किया, total charge distribution when two bodies at different potentials are connected, energy loss निकाला। ठीक है, then कैपेसिटर क्या है, टू आइडेंटिकल सरफेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वन ऑफ द सरफेस इज चार्ज अदर इज अर्थ। तीन तरह का कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। देन हमने पढ़ा स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें दो केस होता है, इनर सेल को चार्ज करो या इनर सेल को अर्थ करो। ठीक है, दोनों में कैपेसिटेंस निकाला। फिर हमने आज सिलेंडरिकल कैपेसिटर किया, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स किया। ठीक है, capacitors in parallel, capacitors in series, and Van de Graaff generator. So that's all. Thank you very much.